Okay, good afternoon, class. In the previous lecture, we are talking about pigeonhole principle, and I have told you that if there are n plus n pigeonholes, n pigeons, or more than that, and they are to be placed into k boxes. This is called to be a generalized one. Okay, then there will be at least one box containing this at least upper bound of n upon k objects. Okay, so this we have done in the previous class, and for this we have taken this example. Suppose among 100 people we have to find out the minimum number of people who born in same month. Okay, so here we it requires 100 upon 12 and upper bound of that, and therefore the greatest common integer, okay, the greatest integer out of 100 by 12 will be 9. Okay, so here we have got 9. Now I have written this statement. So what is the meaning of this? You can understand this by let us say we have 96 people. Okay, we have 96 people. Then how many of them will be born in same month? That is 8. Okay, if here we are having 96 people, then 8 of them must be born in same month, because there are 12 months in a year, and if we are having 96 people, then at least 8 of them will be born in same month. But whenever we are having 97 people, in that case at least 9 of them will be born in same month, क्योंकि 12 में हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 8 जो हैं सभी में मंथ में आ जाएंगे, लेकिन जो 97th पर्सन होगा वो किसी न किसी पे रिपीट होगा, तो जो 8 था वो 8 की जगह 8 + 1 यानी 9 हो गया. ठीक है. So how this what is the significance of this statement? तो you can understood by r की वैल्यू कितनी है 9. ठीक है, r की वैल्यू 9 पुट करो यहाँ पे, तो r - 1 कितना हो गया 8. k की वैल्यू कितनी है, तो k मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स, तो k की वैल्यू कितनी है 12. तो 12 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें वी विल गेट 96, और उसमें +1 करें तो यू विल गेट 97. So from this we can say 97 is the smallest integer satisfying the inequality, this 97 upon 12. Okay, 97 upon 12 upper bound, and that is greater than equals to r means 9. तो 97 upon 12 का अपर बाउंड क्या होगा 9, and 9 is greater than equals to 9. This is true. Okay, देखो n की वैल्यू कितनी रखी हमने 97. अभी हमने कैलकुलेट किया 97 क्यों ले रहे हैं, दैट इज k इंटू r -1 + 1. k की वैल्यू है 12, r की वैल्यू है 9. मैं इस एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूँ. तो r की वैल्यू है 9, तो r -1 हो गया 8. 12 इंटू 8 96 + 1 97, और 97 को अगर हम 12 से डिवाइड करें और उसका अपर बाउंड लें तो ये कितना हो जाएगा 9, एंड 9 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9. दैट इज ट्रू. ठीक है, लेकिन यही अगर n की वैल्यू 96 हो जाए तो 96 अपॉन 12 अपर बाउंड क्या होगा 8. 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9. कंडीशन क्या हो गया फॉल्स. तो इसलिए स्मॉलेस्ट इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी क्या होगा अपर बाउंड ऑफ n अपॉन k. गॉट दैट. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड to ensure that 9 of them are born in same month. Okay, now I am changing the question. Suppose we are asking for
find out the number of people to ensure that 9 of them are born in same month. Yes, tell me what is the answer. So I hope you got the meaning or the significance of this statement. I am asking, find out the minimum number of peoples required to ensure that 9 of them are born in same month. बताओ क्या आंसर होगा. Yes, it will be 97. ओके क्यों 97 होगा. तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो गई 12, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ कितने होते हैं ईयर में 12. r की वैल्यू कितनी है 9. तो 12 इंटू 9 माइनस 1 दैट इज 12 इंटू 8 एंड दैट इज 96 और प्लस 1 97. तो देयर फोर वी रिक्वायर मिनिमम 97 पीपल टू गारंटी दैट 9 ऑफ देम आर बॉर्न इन सेम मंथ. अगर 97 से एक भी कम होगा तो उस केस में आप गारंटी नहीं दे सकते कि 9 जो हैं 9 पीपल आर बॉर्न इन सेम मंथ. क्योंकि उस केस में एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक मंथ वाले 8 लोग हों, तो 12 मंथ वाले कितने हो जाएंगे 96 लोग. तो इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 97. क्योंकि जैसे ही 97th पर्सन आएगा वो किसी न किसी एक मंथ में प्लस होगा, तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9. ओके सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, और इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल. ओके दिस इज कॉल्ड टू बी एज एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल. ठीक है, तो whenever we are saying generalized pigeonhole principle we are talking about this statement, and whenever we are saying extended pigeonhole principle then we are talking about the minimum number of things required. ठीक है, और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एक बॉक्स में कितना होगा, और वहां पे हम बताएंगे कि एक कितने मिनिमम ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होंगे. तो इसका जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट है. ठीक है, got that? I hope it is clear now. Okay. ओके मूविंग टू द नेक्स्ट, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं तो उससे आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगा. हियर यस, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हियर वी आर आस्किंग, सो if 9 books are to be kept in 4 shelves, there must be at least one shelf containing at least 3 books. तो आप इसको लॉजिकली ऐसे सोच सकते हो कि आपके पास अगर 4 सेल्फ्स हैं किसी अलमीरा में, ठीक है, तो एक सेल्फ में अगर आप 2 बुक रखते हो तो 4 सेल्फ में कितने बुक रखोगे टोटल 8. गॉट दैट? अगर एक अलमारी में 4 खाने हैं तो उस एक एक खाने में अगर हम 2-2 बुक रखें तो चारों खाने में कितने बुक होंगे 8. ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे पास 9th बुक होगा तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी क्या कि एक सेल्फ में या एक खाने में जो है कम से कम कितने बुक हैं 3, क्योंकि उस 9th को आपको उन चारों में से किसी एक में तो रखना ही पड़ेगा, और जिसमें भी रखोगे उसमें कितने बुक हो जाएंगे 3. तो इसी को हम जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल से कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं. तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला n अपॉन k. यहाँ n की वैल्यू क्या है 9, k की वैल्यू क्या है 4, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये बॉक्सेस हैं. ठीक है, या ये पिजन्स हैं और ये पिजन होल है. पिजन होल का मतलब जहां पे प्लेस करना है, और पिजन का मतलब जिसको प्लेस करना है. ठीक है, तो ये पिजन्स की तरह कौन काम करेगा बुक्स, और पिजन होल की तरह कौन काम करेगा सेल्फ्स. ठीक है, तो n अपॉन के, n की वैल्यू कितनी है 9, k की वैल्यू कितनी है 4, 9 डिवाइड बाई 4 अपर बाउंड क्या होगा 3. ठीक है, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो अगर हम इंटीजर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3. ठीक है, अब इसी को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं. सपोज फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड
to ensure that one shelf contain at least 3 books out of 4 shelves. Find out the minimum number of books required to ensure that one of the shelf contain 3 books out of 4 shelves. ठीक है, तो यहां पे देखो आपको कितना कंटेन करना है, 3, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब अगर हम उस फॉर्मूला या उस स्टेटमेंट की बात करेंगे जो हमने बाद में लिखा था, तो उस पर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको गिवन क्या क्या है, तो गिवन है के की वैल्यू। के की वैल्यू क्या है, तो के यहाँ पे बॉक्स की तरह काम कर रहा है, तो कितने बॉक्स या कितने सेल्फ है हमारे पास, 4। और आर की वैल्यू क्या है, तो आर हमें कितने चाहिए बुक्स, एक सेल्फ में 3, तो आर की वैल्यू हो गई 3। तो मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा था, के इंटू r-1 + 1। चलो कैलकुलेट करो आप, तो के की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 3 है, तो के इंटू 4 इंटू 3-1 + 1 एंड दैट विल बी 9। So therefore, we require minimum 9 books to ensure that the one shelf contain 3 books out of 4 shelf. अगर आपके पास 4 शेल्फ हैं और आपको ये इंश्योर करना है कि एक शेल्फ में कम से कम 3 बुक हैं, तो उस केस में आपको जो है 9 बुक्स मिनिमम लेने पड़ेंगे, क्योंकि 8 होगा तो दो दो को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो उस केस में 3 की पॉसिबिलिटी नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास 9 बुक है तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी 100% है कि एक सेल्फ में कम से कम 3 बुक तो होंगे ही। ठीक है, कम से कम एक सेल्फ ऐसा होगा जिसमें 3 बुक होंगे। ठीक है, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। ओके, तो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। अब इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पे फॉर्मली बोलते हैं एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल। जो अभी तक हमने पढ़ा उसी को हम फॉर्मली यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड टू बी एज एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल। इट सिंपली सेज दैट इफ n pigeon holes are occupied by k into n plus 1 or more pigeons where k is a positive integer, then at least one pigeonhole is occupied by k plus 1 or more pigeons। ठीक है, तो आप इसको एक बार और पढ़ो। इट इज इफ n पिजन होल्स आर ऑक्युपाइड बाय k इंटू n प्लस 1 और मोर pigeons, then at least one pigeonhole is occupied by k plus 1 और more pigeons। सिंपल सा रीजन है। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल एक देखते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, find the minimum number of students in a class to be sure that 3 of them are born in same month। ठीक है, तो यहाँ पे k प्लस 1 की बात हो रही है, तो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें जो हमने पहले पढ़ा यहाँ पे, अब इससे इस स्टेटमेंट को अगर आप कोरिलेट करो यहाँ से, तो ये क्या बोल रहा है, देन एट लीस्ट वन पिजन होल इज ऑक्युपाइड बाई k प्लस 1 और मोर पिजन्स। तो यहाँ पे पिजन होल की जगह मंथ आ जाएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एक मंथ में मिनिमम कितने बच्चे हों, 3। तो k प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई, 3। ठीक है, तो यहां से आ गया, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है श्योर दैट 3 of them आर बॉर्न इन सेम मंथ। तो अगर हम इस फॉर्मूला से कर रहे हैं या इस एक्सटेंडेड प्रिंसिपल को यूज करके कर रहे हैं, तो k प्लस 1 की वैल्यू है, सॉरी, k प्लस 1 की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है
12। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि हम n क्या यूज कर रहे हैं, k क्या यूज कर रहे हैं, ये जस्ट वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो कि n कौन सा है और k कौन सा है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ये क्लियर होनी चाहिए कि किसको प्लेस कर रहे हैं और किस में प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। जिसको प्लेस कर रहे हैं वो पिजन की तरह काम करेगा, और जिसमें प्लेस कर रहे हैं वो पिजन होल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो किसको यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, स्टूडेंट को, ठीक है। और जो किस में प्लेस कर रहे हैं, तो मंथ्स में, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको सोच सकते हो। तो यहाँ पे k+1 की वैल्यू है 3, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमें ये इंश्योर करना है कि एक मंथ में जो है 3 होने चाहिए, ठीक है। तो उसमें स्टेटमेंट क्या है, k इट विल रिक्वायर मिनिमम k इंटू n+1, ठीक है। तो k की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि k+1 जो है 3 है, तो k की वैल्यू हो गई 2। तो 12 इंटू 2+1 यानी कि आंसर हो गया 25। क्योंकि अगर किसी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं तो ये श्योर है कि कम से कम 3 लोग ऐसे होंगे, 3 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ सेम मंथ का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हो। हियर n इज 12, ठीक है। तो 12 मंथ्स, इसको हम पिजन होल्स बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने वही बताया अभी आपको कि किसको प्लेस कर रहे हैं और किस में प्लेस कर रहे हैं। तो किसको प्लेस कर रहे हैं, स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट जो है पिजन की तरह काम करेंगे। किस में प्लेस कर रहे हैं, तो पिजन होल्स में प्लेस कर रहे हैं, यानी मंथ्स में प्लेस कर रहे हैं। तो मंथ जो होगा वो पिजन होल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू 12 हो गई, k+1 की वैल्यू 3 हो गई। तो k+1 3 होने से k की वैल्यू हो गई 2, और k की वैल्यू 2 है तो k इंटू n+1 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 12+1, एंड दैट इज 25, ठीक है। तो हाउ मेनी पिजन्स, यानी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो इट विल रिक्वायर kn+1 एंड दैट इज 25 स्टूडेंट्स। तो अगर किसी क्लास में 25 बच्चे हैं तो ये श्योर है कि 3 बच्चे ऐसे होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ सेम मंथ का होगा, ठीक है। एटलीस्ट 3 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका मंथ ऑफ बर्थ सेम होगा। गॉट दैट? हाँ, यस, ये उससे भी आ जाता, तो उसी को यहाँ पे फॉर्मुलेट करके लिखा गया है। यहाँ r-1 को, यहाँ r-1 की जगह हम यूज कर रहे हैं क्या, k। सतीश, उसी को, जो पिछला स्टेटमेंट था ना, उसी को फॉर्मुलेट करके लिखा हुआ है। r-1 को हम लिख रहे हैं क्या, k, ठीक है। और k की जगह हम लिख रहे हैं n। तो n इंटू k+1, यानी k इंटू n+1, एक ही बात है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट का वेरिएबल नेम है। वेरिएबल नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, आर के एन कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। द मैंने बताया अभी आपको कि ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पिजन है और कौन सा पिजन होल है। अगर ये क्लियर है तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो तो जस्ट वेरिएबल का नाम है, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो दैट इज नॉट ऑफ मैटर। ओके, ओके, लेट अस टेक वन मोर प्रॉब्लम। तो ये इसका आंसर हो गया, मिनिमम स्टूडेंट इन द क्लास इज 25 फॉर 3 ऑफ देम टू बी बॉर्न इन सेम मंथ। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इन a class to be sure that at least 6 of them will receive the same grade if there are 5 possible grades A, B, C, D और F। ये 5 ग्रेड है हमारे पास। हमें ये इंश्योर करना है कि 6 ऑफ देम विल रिसीव द सेम ग्रेड। यस, अब जो मैंने एक्सटेंडेड, ये जो एक्सटेंडेड लिखा हुआ है, इससे कोरिलेट करके ये बताओ कि n की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू क्या है, कौन n है और कौन k है इन दिस प्रॉब्लम। यस, यू कैन आंसर इन योर चैट। इसमें
स्टूडेंट क्या है और ग्रेड क्या है, कौन पिजन है और कौन पिजन होल है। ओके, तो अगर हम इसको स्टेटमेंट से कोरिलेट करें तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो पिजन्स की तरह काम कर रहे हैं, और जो ग्रेड्स हैं वो पिजन होल की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या दे रखा है, तो आपको क्या दिया हुआ है, पहले तो आपको दिया हुआ है क्या, एन की वैल्यू, और ये है कितनी, बताओ, एन की वैल्यू कितनी है, 5, क्योंकि 5 पॉसिबल ग्रेड्स हैं। ठीक है, और k+1 कितना है, 6। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने लिया था, 3 ऑफ देम आर बॉर्न इन सेम मंथ, तो k+1 कितना हो गया था, 3। अभी हमें क्या करना है इस वाले में, एटलीस्ट 6 ऑफ देम विल रिसीव द सेम ग्रेड, तो k+1 कितना हो गया, 6। जैसे पिछले एग्जाम्पल में k+1 कितना था, 3, ऐसे ही यहाँ पे k+1 कितना है, 6। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके लिए क्या बताया गया है, देयर विल बी k × n+1, k की वैल्यू हो गई 5, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, k × n+1, यानी 5 × 5+1, एंड दैट इज 26। सिंपल सा लॉजिक ये भी है कि 5 ग्रेड हैं, तो 5 ग्रेड के हर एक ग्रेड में अगर 5 5 स्टूडेंट हों तो कितने स्टूडेंट हो गए, 25। जैसे ही 26th स्टूडेंट आएगा वो क्या होगा, उसका ग्रेड जो होगा इन्हीं पांचों में से तो कोई एक होगा। तो जो अभी तक हमारे पास हर एक ग्रेड के 5 स्टूडेंट थे, वो क्या हो गया, अब एक ग्रेड उसमें कम से कम ऐसा होगा जिसमें 6 स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही तो हमें बताना था, दैट इज टू बी श्योर दैट एटलीस्ट 6 ऑफ देम विल रिसीव द सेम ग्रेड। ठीक है, तो बाय दिस द आंसर विल बी 26। I hope it is clear to you. Yes. तो आप जो है ना इस स्टेटमेंट को याद रखो, केवल ये वाला स्टेटमेंट याद रखो, तो इससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और जब हमें मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना होगा तो उस केस में सिंपल सा है, अपर बाउंड ऑफ n/k। ठीक है, तो ये याद रखो, दो रिजल्ट, तो इन दो रिजल्ट से पिजन होल का आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। ओके, अब इसमें मेन चीज होता है क्या, कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पिजन होल किस प्रॉब्लम में लग रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस प्रॉब्लम में हमें पिजन होल प्रिंसिपल अप्लाई करना है। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि हमें पिजन होल इसमें लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम देख के आप ये समझ पाओगे कि इसमें पिजन होल लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया,
ओके, तो इस एग्जांपल को हमने ऐसे सॉल्व किया। n इक्वल्स टू 5, k प्लस 1 की वैल्यू हो गई 6, तो k की वैल्यू हो गई 5, n इंटू k प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 5 प्लस 1 एंड दैट इज 26। ठीक है, तो देयर फोर इट रिक्वायर मिनिमम 26 स्टूडेंट्स। एक और प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं हियर। Find the minimum number of students in a class to be sure that, ये तो रिपीट हो गया, 4 आउट ऑफ देम आर born in the same month। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस टाइप के प्रॉब्लम। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। यस, everyone put your answers in the chat box। Out of 130 I have got only 5 response till now, जबकि ये 1 सेकेंड का काम है आपके लिए। Yes, just put your answers in the chat box। ऑलरेडी मैंने इस तरह के 2 प्रॉब्लम पहले करा दिए। तो आई होप एवरीवन विल बी क्लियर टू दिस प्रॉब्लम। ओके, तो अगेन हमें क्या चाहिए, 4 आउट ऑफ देम आर बॉर्न इन सेम मंथ। तो k प्लस 1 की वैल्यू हो गई 4, और n की वैल्यू हो गई 12। तो, तो हमें मिनिमम कितना चाहिए, k इंटू एन प्लस 1, k इंटू एन प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी, k की वैल्यू 4 है, k प्लस 1 की वैल्यू 4 है, तो k हो गया 3, और 12 इंटू 3 प्लस 1 ये हो गया 37। So therefore the answer for this problem will be 37. Got that? Okay. So I think this topic will be clear to all of you. Okay. तो मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। n इक्वल्स टू 12 है, k प्लस 1 इक्वल्स टू 4 है, k 3 हो गया, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा k इंटू एन प्लस 1 यानी कि 37। एंड दिस इज द लास्ट वन। So that if any 20 people are selected, then we may choose a subset of 3 so that all 3 were born on the same day of the week। ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर दे रखा है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये होगा, आपको ये देखना है क्या, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, के यहाँ पे क्या है, तो नंबर ऑफ डेज है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्या, बॉर्न ऑन सेम डे ऑफ द वीक, और एक वीक में कितने डे होते हैं, 7। ठीक है, तो के की वैल्यू हो गई 7, एन की वैल्यू हो गई 20, तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु बॉर्न ऑन सेम डे वो कितना हो जाएगा, तो 20/7, और इसका अपर बाउंड, तो 20/7 का अपर बाउंड क्या होगा, 3, क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो अपर बाउंड कितना हो जाएगा, इंटीजर 3। ओके, तो ये 3 इंटीजर हो गया, 3 वैल्यू, तो therefore we have proved that we may choose a subset of 3 so that all 3 were born on the same day of the week। ठीक है, क्योंकि सबसेट ऑफ 3 सेलेक्ट करोगे, मतलब 20 लोग हैं, 20 में से हम 3-3 करके लोग सेलेक्ट करें, तो उस केस में क्या होगा, वो तीनों ही सेम डे बॉर्न वाले भी हो सकते हैं। गॉट दैट, क्योंकि टोटल 20 पीपल हैं और एक वीक में 7 दिन ही होते हैं। ठीक है, तो अगर हम 3 पीपल को सेलेक्ट कर रहे हैं एक सबसेट में, और 3-3 करके सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो तीनों सेम डे वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, so this is due to extended pigeonhole principle, and after that in next class we will discuss about probability।
ठीक है. And after completing in next two classes this probability topic, we will discuss about the problems related to permutation, combination, sum rule, product rule, then pigeonhole principle and probability. तो इनके सारे के प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे एंड एट दैट पॉइंट वी विल बी completing first module. Okay, so by this month we will finish first module probability. Okay, फर्स्ट मॉड्यूल, क्योंकि इस प्रोबेबिलिटी के बाद एक टॉपिक रह जाएगा दैट इज मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एनी क्वेरीज अप टू हियर यू कैन आस्क. एग्जाम्स का आपको बता दिया जाएगा. अभी 21 से कुछ ओपन होने की बात हो रही है. ठीक है, तो 21 से अगर ओपन होता है तो जब भी ओपन होगा नोटिफिकेशन यही है कि जब भी कॉलेज ओपन होगा उसके 15 डेज में आपके एग्जाम्स होंगे. ठीक है, तो लेट अस से लेट अस सी कि कब होते हैं, कैसे होते हैं. ओके, सो एनी क्वेरीज अप टू हियर. सेकेंड सेम, कौन सा सेकेंड सेम? हाँ, अभी आप थर्ड सेम में हो ना, तो सेकेंड सेम का पहले एग्जाम होगा फर्स्ट ईयर का. ओके, yes, anyone having doubts up to here you can ask. Okay, so I'm leaving at this point and we will discuss about the next topic, that is probability, from the next class. Thank you all.